के सिर पर ही हमारे पेपर चलेंगे, नहीं तो बहुत हेल्प करते हैं। जब पता है कि सारा कुछ हो गई, चीज़ें हो गई है, तो मैं सोचती हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? We read books and learn new things. Knowledge gives us shiny things. Student life is bright and nice. It is the best time of our life. Today in my podcast, I have a tractor girl. Tractor girl, why I am mentioning, you will come to know later on. I have Ishur Kaur with me. Welcome in the podcast. Ishur, tell me something about yourself. Tell me about your family. My father is farmer and my mother is housewife. I have two sisters, one is older than me and one is younger than me. Okay. Who is the elder one? In which class she is studying? She is in America, Oh wow. study about medical. Magical. Okay. What about the younger one? She is in class 6th. Okay. As you have mentioned that your mama is a housemaker and your father is a farmer. You know the farmer is called the Annadata of our country. Right? Tell me something about your farms. Your father is going to the farms daily? Yes. Okay. तो कौन-कौन सी फसल आप वहाँ पर उगाते हो? Wheat, rice, corn, Uh-huh. and some vegetables also. You are also visiting your fields. Yes. क्या करते हो वहाँ पे जाके? In the evening, I water vegetables and fruits, plants. Chemical free vegetables and fruits. Yes. Okay. So Ishwar, my next question is generally you are going to fields to watch the things, है ना? To touch the fields, to feel the environment. But how you help your dad? Actually, he taught me how to drive tractor. So on Sunday or on holidays, I go with him and drive tractor. आप पूरा वो पगडंडियों पे ट्रैक्टर चला लेते हो? Yes, if I have some difficulty, he taught me how to drive. That's good. तो आपको देखकर बाकी जो girls हैं वो inspire होती हैं? Yeah, my younger sister also tried yesterday Okay. drive tractor. Uh-huh. Was she successful? Yeah. Okay. So we generally will talk about the parents that they feel proud that their children are doing good. So what was your percentage in class 9? 81%. 81%. Okay, who is more motivating, your dad or your mom? Maybe my dad. Your dad, he is more promising. Okay, generally क्या आपको वो गुरु मंत्र होते हैं ना, बेटे अच्छी तरह से पढ़ो, डिसिप्लिन टाइम पे उठो, टाइम टेबल बनाओ ना, तो पापा क्या कहते हैं जनरली? मैंने ऐसे ही कहा कि अगर हार जीत लगी हो इट्स ओके, पर मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई कितना भी आगे हो बट तुमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, किसी की तरफ अच्छा ईश्वर, टेल मी वन थिंग, अगर आपके पास यू हैव योर एल्डर सिस्टर, तो ही इज़ योर बेस्ट सेवियर. आप कहीं कुछ मुश्किल में फंस गए तो शी इज़ देयर टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, राइट? तो आप अपनी सिस्टर के बारे में कुछ बताइए. मेरी सिस्टर हमेशा मेरी हेल्प करती है, लाइक इन द सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी. मुझे पहले एसएसटी बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी, पर उसने मेरे लिए एसएसटी एक सब्जेक्ट बहुत ही इजी बना दिया. वाओ, अब कैसे? लाइक उसने मतलब हर एक चीज़ को ना मेरे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, छोटे छोटे टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना. वो So that you can understand. यस, हाँ. तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है एसएसटी करने में. एंड अब हमारे एसएसटी के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे पर कितने टाइम के लिए मेरे को नहीं थे, सो मुझे मेरी सिस्टर ने करवाया सब कुछ. Okay. Acha, you talk about your elder sister, you talk about your dad. Now I want to know about your mama. My mother struggled very much in her life. She also taught me same thing as my father taught me. According to her, हमें सही रास्ते पर वो लेकर आई है. हमें उन्होंने यही कहा है कि सही रास्ते पर चलो, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी को एक्सपीरियंस किया हुआ है. सो हमें यही कहते हैं कि ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना, अच्छे से लाइफ स्पेंड करनी है, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना. अगर कोई कुछ कहता तो आपने हमारे पास आना है. मतलब उन्होंने हमें लाइफ सिखाया है कि लाइफ में क्या है. Okay. तो जैसे your elder sister is very protective about you. Are you for your younger sister? वो जिद करती है या उसको डांट पड़ती है तो आप हंसते तो नहीं हो? सेव करते हो उसको? कई बार मैं भी मैं पेरेंट्स की साइड ले लेती हूँ कि ऐसे है ऐसे, पर मैं यंगर सिस्टर की साइड लेती हूँ कि
अच्छा ईश्वर, आपकी बातों में से ही एक मैं बात उठाती हूँ. Today generally we have seen that parents they are busy with their today parents are busy with their own work. Children they are busy with their study, with their tuitions and everything, notes. You know, so many things are there, what not. So there is a generation gap. Students they are not sharing their heart with their parents, and parents they don't have time to listen to their babies. So would you like to tell me something about this generation gap and how we can fill it? Like in your home, आप बातें करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मम्मा पापा अवेलेबल नहीं ठीक है, है. आपको हम जैसे डिनर टाइम करते हुए हम साथ में बैठते हैं. पापा भी कहते हैं कि तब सबने साथ में मिलकर खाना खाना है, ये नहीं कि कोई पहले खा ले कोई बाद में, सभी साथ में बैठते हैं क्योंकि एक वही टाइम है जब हम साथ में बैठ कर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. एंड डिनर के बाद वी गो टू वॉक एंड वॉक करते करते भी हम बातें करते हैं, तो हम टाइम स्पेंड करते हैं साथ में. तो आजकल बच्चे इतना हेजिटेट क्यों फील करते हैं कि मम्मा पापा को ये बात नहीं बतानी या ये ऐसे नहीं हम उनको बता सकते, ये ऐसा क्यों है? Because sometimes parents don't understand what we are going to say or what we want to say. और यू आर गोइंग थ्रू, है ना, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. तो इसी वजह से Maybe. तो आप ओपन है अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, सब आपकी बातें सुन लेते हैं, है. अच्छा ये बताइए कि कभी उन्होंने आपको ये गाइड किया है कि किस तरह के फ्रेंड्स बनाने चाहिए, क्या कहते हैं? वो वही यही कहते हैं कि मतलब बुरी संगत में नहीं पड़ना, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ. अगर कोई आपकी बातों का बुरा मानता है मान ले, पर तुमने हमेशा सही रास्ते पर चलना है. अपनी लाइफ के फ्रेंड्स खुद चूज करने हैं पर सही चूज करने हैं, मतलब बुरी संगत में मत पड़ना. बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई है. तो ईश्वर, आर यू इंटरेस्टेड फॉर गेम्स ऑल्सो? खेलते हो आउटडोर ना से इंडोर गेम्स तो खेलते हैं. कौन सी गेम खेलते हो? लूडो, चेस? लूडो खेलते हो. ओके. पेरेंट्स के साथ भी कभी खेलते हो? जो होएगा So now you are in class 10 और class 10 आपको पता है it's a board exam. बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी ईश्वर क्या क्या करती है? to practice in my free time. Like जून की छुट्टियां आने वाली है तो मैंने यही सोचा कि इसमें अब जितना हो सके उतना स्टडी करना है, बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करना. एक हफ्ता स्पेंड करनी है नानी के हाउस या फिर कहीं और बाकी का टाइम जितना हो सके उतना स्टडी करना. एक ईश्वर मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि जब बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं तो वैसे देखकर दिल जो है वो डर जाता है कि इतनी रिवीजन करनी है. उसको काम डाउन करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? चैप्टर को हाफ में डिवाइड करके, लाइक एसएसटी का हमारा भी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन यूरोप. तो पहले देखकर लगता है बहुत डिफिकल्ट है, पर सर ने एक टॉपिक करवाकर वो हमारे लिए इजी बना दी. लाइक उसमें इतनी सारी डेट्स है पर वो हमें अभी याद हो रही है. और एसएसटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, जब तक आप समझेंगे नहीं यू वोंट अंडरस्टैंड. अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, आपको याद है मेन जो पॉइंट्स होते हैं हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है क्या? नोट्स के सिर पर ही हमारे पेपर चलेंगे. लाइक बहुत हेल्प करते हैं नोट्स, उसमें से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं अगर हम नोट्स अच्छे से करें. सो नोट्स बनाने बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा ईश्वर, आपका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, टिप्स महत्वपूर्ण है ना, आपके सीनियर्स ने बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल की है. तो अब ईश्वर देखती है अपने आप को वॉल ऑफ फेम पर? इमेजिन क्या आता है इमेजिनेशन में, क्या सोचते हो? कि मैंने बहुत अच्छी you will get, definitely you will get. Okay. जब एक स्टूडेंट पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर है, मगर जिस दिन आप लर्न कर लेते हो, एज यू आर टॉकिंग अबाउट एसएससी सब्जेक्ट ना, चैप्टर इज लेंथी मगर टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया एंड देन आपको वो इजी लगने लग गया. एंड ऑफ द डे एक खुशी आती है मन में कि वाह इतना टफ था फिर भी हमने कर लिया. उसके बारे में कुछ बताओ, वो जो डोपामाइन रिलीज होता है आपका. अगर मैंने ये टॉपिक कर लिया तो मैं आगे भी कर लूँगी. ये फीलिंग आती है कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक इतने अच्छे से मैं कर सकती हूँ तो आगे भी कर सकती हूँ. तो बहुत ही खुशी सी होती है कि ये मैंने कर दिया. तो फिर एक चपाती और खाने का मन करता है, अदरवाइज फिर मन नहीं करता है ना, जल्दी जल्दी से खाओ फिर से पढ़ाई कर लेना है. तो जब आपका काम कंप्लीट हो गया यहाँ अंदर से खुशी नहीं है ना. अच्छा जो पढ़ाई करने का नहीं मन कर रहा, कुछ नहीं करने का मन कर रहा, तो ईश्वर अपने आप को एंटरटेन कैसे करती है? सोती ही होंगी टाइम में, मतलब जब पता है कि सारा कुछ हो गया, रिवीजन हो गई है तो मैं सोती हूँ. अच्छा ऐसा क्यों?
सोना अच्छा लगता है आपको? ओके, तो सोते हो तो फिर सपने भी देखते हो। कैसे सपने आते हैं आपको अपने फ्यूचर को लेकर? आप आफ्टर 10 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? As my dream, I want to become a lawyer. लॉयर, ओके। तो महतपुर के सारे बच्चे लॉयर बन जाएंगे तो इतने केसेस आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक स्कूल का अच्छा होना कितना ज़रूरी होता है? आप डिप्स महतपुर में हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिप्स महतपुर। हाउ डू यू फील? Do you feel proud of your school? Yes, I feel very proud of my school because teachers are very nice and friendly to us. Whenever we ask any question, they answer us very बहुत अच्छे से। आपको कल से पता था कि आज हमारा पॉडकास्ट है, तो कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था क्योंकि आप मीडियम पे भी हमें मिले थे तो आपसे बातें करके अच्छा लगता है। तो घर में बता दिया था कि मेरा पॉडकास्ट आना है, सब तैयार हो जाओ। हाँ तो उन्होंने क्या कहा? अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। वेरी गुड। ये जो आपने बात बोली ना लास्ट में, घबराना नहीं, तगड़े रहो, तगड़े होकर रहना चाहिए, है ना? तो आप जिंदगी में तगड़े होकर रहना चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कैन डू वंडर। ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आने के लिए। मे यू हैव अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ अहेड। गॉड ब्लेस।